फिर एक बार आप सभी को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। Once again, greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ऐसे बहुत बड़ा संकट काल के समय में भी और एक बार प्रभु को आराधना करने के लिए प्रभु सहायता किया है। And once again, God has helped us to in this type of troubles. और हम भी सावधानी से रहना हमारा काम है। And we should also our work is responsible is to live with awareness. इस दुनिया में रहते समय कुछ सावधानी कुछ नियम है, उस नियम के अनुसार जीना पड़ता है। And in the world we are living, so we have to live with rules and law. हम सोचते हैं कि हमको तो परमेश्वर है, हमको कुछ नहीं होता करके हम बोलते हैं। And we think and we say that we have God, nothing will happen to us. लेकिन हम पूरा परमेश्वर के विरुद्ध में ही रहते हैं और हमको कुछ नहीं होता करके हम बोलते हैं। And we do against God and we say that nothing will happen to us. परमेश्वर बोलता है आप ऐसा जिंदगी जियो तो आपके लिए आपके साथ हमेशा मैं रहूंगा करके परमेश्वर ने वादा किया, बताया था। And God says and promised that if you live in this according to this, and I will. నేను పెట్టుకోనా किसको तो मैं आपके साथ में रहूंगा, आपको मदद करूंगा, आपको संकट में भी सहायता करूंगा और आपके बीच में रहूंगा करके परमेश्वर बताया है। And God says that I will protect you and I will be with you, he says. एक वचन पढ़ेंगे इस समय and we will read one verse this time. Joshua 18 अध्याय chapter 18 11 वचन verse 11. Joshua chapter 18 verse 11. यहोशुआ 18 अध्याय 11 वचन। Joshua chapter 18 verse 11. मिलकर पढ़ेंगे। We will read together. బెన్యామీనీయుల గోత్రమునకు వారి Lord came upon వంతు చీటి the tribe of Benjamin, చీటి వలన clan కలిగిన by clan, సరిహద్దు their allotted territory lay between the tribes of Judah and Joshua. మధ్య ఉండెను। यहाँ पर बेन्यामीन के बारे में और हम देख रहे हैं। And we are seeing here about Benjamin. बेन्यामीन गोत्र के और उनके वंशावली के बारे में देखते हैं। And we see about the tribe of Benjamin and descendants of Benjamin. और एक वचन देखेंगे उत्पत्ति 35 अध्याय 17 वचन। And we will see another verse, उत्पत्ति 35 अध्याय 17 वचन। Genesis chapter 35 17 वचन verse 17. सब मिलकर पढ़ेंगे। And she was having great difficulty in childbirth. The midwife says to her, don't be afraid, for you have another son. భయపడకుము, ఇదియు నీకు కుమారుడని చెప్పెను। और 18 वचन भी पढ़ेंगे। And also verse 18. As she breathed her last, for she was dying, she named her son Benjamin. But his wife, his father named him Benjamin. बेन्यामीन का अर्थ संकट नहीं तो दुख भी, इसका अर्थ नाम का अर्थ दुख भी है और संकट भी है। And Benjamin means its meaning is the trouble and pain. नाम का अर्थ है माँ बाप दोनों राहेल और याकूब ने नाम दिया है। And this name माँ बाप नाम दिया है। And the parents gave this name. और नाम का अर्थ यह है कि संकट नहीं तो दुख है। And this name mean is pain and trouble. क्यों ने जैसा जन्म लिया
वैसा ही माँ मर गई, because when he was born, the mother was died. इसलिए नाम कौन सा नाम है? संकट Therefore- नहीं तो दुख, दुख का दुख नाम है, अर्थ वो है। And what is this name means trouble and pain. हमारा नाम का भी अर्थ कुछ ना कुछ रहता है। And our name also have a meaning. मेरा पिताजी मेरा नाम रखा है रामदास, And my father gave my name as Ramdas. रामदास का अर्थ क्या है ना? राम का और सीता का सेवा करना है। And what is this mean? Ramdas mean is to serve Ram and Sita. वो बचपन में मेरे को बहुत बड़ा बीमारी आई थी, In childhood, I was big ill. और माँ और बाप आके कटिया में सो के ऐसे रहने से कटिया को हड्डी बन के और कटिया में चिपके रह के सो रहे थे बीमारी के वजह से। And I was sleeping to bed, lying on a bed. I was सोते थे ऐसे बीमारी से। sleeping with illness. तो मम्मी आके और चमड़ा को ऐसे पकड़ के जोर से ऐसे खींचता था, बोलते मेरे को बताते थे। And mother was coming and she was stitching my skin. जोर से ऐसे खींचने का, जोर से खींचने का। And she was pulling my skin. इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? समझ में आया होगा ना? This means you are understanding. क्या समझ में आया है? What do you understand? हाँ, जिंदा है क्या मर रहा है? He is dead or alive. और बाद में वो नाम के वजह से ने दासत्व ने गुलामगिरी यानी सेवा करते करते उनका ही सेवा करते करते रहेंगे करके वो नाम को हटा के और सुनंदम का नाम दे दिया है बाद में। And if he has this name Ramdas, he will always be serving to them. So they changed my name as Sunandam. सुनंदम का अर्थ हंसते हंसते रहो और जोक करते रहो। And Sunandam means always be smiling and always joking. ऐसा है, हंसते हंसते रहो, जोक करते रहो। And always as smiling and always joking. और गुस्सा भी करो। And also angry. ऐसा है, ऐसा इसका अर्थ है बोले पिताजी ने। And it's mean this mean. बेंजामिन का अर्थ यह है कि संकट नहीं तो दुख। And Benjamin means troubles and pain. और इसका और एक अर्थ भी है कि दाहिने हाथ यानी हाँ दाहिने हाथ। And it has another meaning. It's my right hand. दाहिने हाथ यानी दाहिने हाथ जैसा रहता है करके बोलते हैं ना। And right hand means always some says that he is like a right hand. वो भैया तो वो सार का दाहिने हाथ जैसा है, वो अगर वो हाथ नहीं है तो वो सार कुछ भी नहीं करेगा। And if the sir is the right hand of this sir, so without this right hand he can do nothing. वो हमेशा साथ में रहता है, एक हाथ जैसा है। अगर वो भैया नहीं रहने से ना वो एक हाथ गया जैसा ही है, ऐसा बोलते हैं। And some says that if he is always with him, so he is a right hand. Without this right hand he can not do nothing. और ये हाथ से बहुत सारे काम करते हैं, इम्पोर्टेंट काम करते हैं। And this hand always do important works. इस हाथ से ज्यादा बड़े काम इस हाथ से नहीं करते हैं। And the great works and big works we cannot do with this hand. और हर एक काम लिखने का काम भी हो जो भी है, हर एक काम ज्यादा काम ये दाहिने हाथ से ही करते हैं। And we are more and more work like writing we do with the right hand. परमेश्वर भी बोला था कि आपके दाहिने हाथ जैसे आपके साइड में मैं रहूंगा करके प्रभु ने बताया। And God also says that I will be with you like a right hand and in the right side. दाहिने हाथ जैसे आपके साथ में हमेशा मैं रहूंगा। And I will live with you forever like a right hand. अने इसका मतलब ऐसी अभी भारत देश में संसार में इस प्रकार की बीमारियां है और इसका मतलब हमारा परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा। And it's mean that now in India
the illnesses came, but God will be with us like right hand. परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर बचाएगा, And God will protect godly people. लेकिन परमेश्वर एक नियम भी दिया, परमेश्वर ज्ञान भी दिया, परमेश्वर कुछ कुछ बताया, उसके अनुसार हमको जीना है। And God also said some law and some rule. We have to live according to that. शायद याद नहीं है, 1995 क्या 96 के समय में छत्तीसगढ़ में एक गांव में एक ही रात में शायद 7-8 लोग, छोटा गांव में 7-8 लोग एक ही रात में ऐसे आंख बंद कर दिए, नींद में मर गए। And maybe in 1996 in Chhattisgarh, some in one अचानक में मर गए उन लोग। they died suddenly, seven persons, और सब लोग डर गए, and all were afraid. वो ये इस वार्ड में उस वार्ड से रोने का आवाज आ रहा था। And from this ward, the crying sound was coming. उस समय हम इधर महाराष्ट्र में आए थे, And at that time we came to Maharashtra. छत्तीसगढ़ में नहीं थे। इधर आने के बाद वो समाचार हमको सुनने आया। And we were not in Chhattisgarh. We were in when we were in Maharashtra. The message was. बहुत सारे लोग गांव से भाग गए, यानी दूर दूर चले गए थे। And many of people they fled from that village. हाँ, मेरा बचपन के समय में हमारे गांव में भी उस एरिया में भी वैसा ही बीमारी, ऐसा महामारी आया, और एक ही दिन में बहुत सारे लोग रातों रात में मर गए थे। And once upon a time in my village also, because of this illness, many of they were died. और एक वचन देखेंगे इस समय, And another verse we will see, 2 सामुएल 2 Samuel. इस प्रकार की महामारियां, इस प्रकार की संकट अभी जो देश दुनिया में है, इस प्रकार की महामारियां संकट पहले भी आए थे और आ चुके थे। And this type of troubles and this type of problem also came upon. ये परमेश्वर के लोगों के पाप के कारण वचन को सुनते हुए पापों के कारण ही दुनिया में इस प्रकार के महामारी आके बहुत सारे लोगों को लेके गया। And they were hearing the God's word, then also परमेश्वर का आज्ञा का नियम को उल्लंघन करने के कारण वो प्रजा के कारण, परमेश्वर की प्रजा के कारण दुनिया में बहुत बड़ा महामारी आए थे। And the big snare came upon the world, दुनिया में महामारी in the world, because of they disobey the law. अभी भी दुनिया में वैसा ही है, परमेश्वर की वचन को सुन रहा है लेकिन जैसा है वैसा जी रहा है, इसलिए परमेश्वर का काम परमेश्वर भी कर रहा है। And now also అట్లనే చేసుకుంటాడు దేవుడు, ఇప్పుడు కూడా అట్లనే దేవుని ప్రజల పాపం వలన దేవుడు అదే ప్రకారం శిక్షిస్తాడు। And because of a sin of this world of people, God is doing His work. 2 सामुएल 24वां अध्याय 2 Samuel chapter 24 15 वचन verse 15. दावीद की समय की बात है, बाइबल में हम देखते दावीद की समय की बात है। दावीद के पाप के कारण वहां पर बहुत बड़ा महामारी आए थे उस समय में भी। And this is time of दावीद के समय में भी इस प्रकार की महामारी आए थे। in the time of David also this type of snare was came रातों रात upon. में 70,000 लोग मर गए थे। रातों रात में सुबह देखने से हर एक गली में, हर एक वार्ड में, हर एक प्रांत में रोना की आवाज आ रहा था। In the night time 70,000 पढ़ेंगे वो 70,000 people were dead, and everywhere the cry sound was coming. हमको वो संकट नहीं है तो हम हंस रहे हैं, अच्छा है कि नहीं? And we have no this type of we have not have this हमारे type of परिवार trouble, में कोई so we are ऐसा तकलीफ नहीं है, smiling. कुछ भी नहीं है तो हम हमारे चेहरा में रोशनी है, बराबर है ना? हाँ, वचन पढ़ेंगे समय। And we will read verse 15 वचन verse 15. అందుకు యెహోవా ఇశ్రాయేలు మీదికి తెగులు రప్పించగా ఆ దినము ఉదయం మొదలుకొని సమకూటము దేశం వరకు అది జరుగుచుండెను। అందుచేత దాను నుండి బేర్షెబ వరకు 70,000 మంది మృతి పొందిరి। कितने 70,000 सुबह से लेकर शाम तक।
सब लोग देख ही रहे थे, फट 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 गिर के मर रहे थे। And until morning, the people were dying. अगर हमारे सामने ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे? And what will we do when if this will happen? भागेंगे 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 भागेंगे। And we will run and we will run and we will run. हम बोलेंगे दीदी भागो 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 बोलेंगे। And we will say, sister, run run रन रन। ओ मरण आ रहा है, वो भैया मर गया, ये दीदी मर गया, वो परिवार में मर गया, और भागो 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 बोलेंगे। And we will say, a death is coming, sister, run run run। वो भागते समय तो गंज और दो प्लेट और पानी भी लेकर आओ बोलेंगे। And when while you are running, take some vessel and the glass and everything. अगर हमारे सामने वो बीमार आके हमको हमारे सामने आके खड़ा हो गए तो? And if this क्या करेगा? What will you do? ऐसा अगर आके हमारे सामने खड़े हो गए तो क्या करेगा? And if the illness will come, stand before you, what you will do? दावीद देख रहा था, आकाश में देख रहा था उस समय में। And David was seeing in sky. कौन सा वचन है? 16 वचन पढ़ेंगे। And which verse it is? We will read verse 16. 16 वचन, verse 16. सब मिलकर पढ़ेंगे। We will read together. When the angel stretched out his hand to destroy Jerusalem, the Lord was grieved because of calamity and said to the angel was afflicting the people, enough, withdraw your hand. The angel was going. 17 वचन पढ़ेंगे। दावीद क्या बोल रहा है सो देखेंगे। And we will see what David is saying, verse 17. When David saw the angel was striking down the people, యెహోవా he పిలాతు said ప్రార్థన to చేశాడు, God, చిత్తగించుము, I am one పాపం of చేసిన వాడు the one నేనే, who had దుర్మార్గం sinned ప్రవర్తించిన and వాడు done నేనే, wrong. గొర్రెల వంటి వీరేం Disarm చేసిరి, but see. నన్ను నా తన్నిటి What వారిని have they done? శిక్షించుము। Let your hand fall upon me and मैंने my पाप family. किया, मैंने गलत किया, मैंने दोष किया, मैंने गलत किया, मेरे वजह से एक भेड़ बकरे जैसे ऐसी लोगों के ऊपर इतने बड़ा दंड क्यों दे रहे करके रो के प्रार्थना पश्चाताप कर रहा था वहां पे। And David was confessing and he was crying that I am the sinner, I am did wrong and I was evil. Why are you? They are sheep and why are you why are you killing them? वो कबूल कर रहे मेरे पाप के कारण इतने बड़ा संकट क्यों ला रहा है। And he is objecting why because of me why. परमेश्वर के लोगों के कारण उस समय में इतना बड़ा संकट आए थे, परमेश्वर भेजे थे परमेश्वर के लोगों के कारण ही। Because of God's people. हम ऐसे ही अभी भी हम परमेश्वर के वचन को सुनते भी और अन्य जाति जैसे अविश्वासी जैसे हमारा कैरेक्टर रहता है। And by hearing the God words also our character and like other pagans. कोई किसी को बोलने वाला नहीं है अभी समय इस दुनिया में भी। And in this world we can no one say. हम ऐसा बोलते हैं वो कलीसिया ऐसा है, ये कलीसिया ऐसा है, उन लोग तो 20-20 साल से विश्वासी, उन लोग भी ऐसा है तो मेरा क्या है, ऐसा बोलते हैं। And we say that this church is this like and this church is this like from 20 years. वो उन लोग ऐसा है तो इन लोग ऐसा है तो उन लोग ऐसा है तो है हम तो नया और बदल जाएंगे, ऐसा हम हमारे मन में ऐसा विचार आता है। And the thing come in our heart mind that they are doing this church and they are doing this like and हमारे गांव में तो वो 20 साल के विश्वासी है, वो तो चर्च में भी जाते हैं, वो तो अट्टे कुछ बीमारी भी नहीं है बोलते हम। And we say that they are going they are from believers from 30 years they are एक साइड से इतना बड़ा संकट आने से भी इसराइल लोगों को डर नहीं थे। And in one side this much big trouble is coming upon that they are
इसराइल लोगों का आदत ऐसा था, जब संकट आया, जब परेशानी है, जो महाबीमारियां, वो कोई मर रहा है तो रोड में आके प्रभु में पापी करके पुकारते थे परमेश्वर को। And the Israel people were, when the big trouble and the pain and a problem come upon them, they were coming the road and they were confessing. बाद में तुरंत में वो दुख और वो समय से दूर जाते थे, फिर जैसा है वैसा ही जाता थे। And then afterwards, after that, the problem, the trouble and the pain was going out. इसके वजह से आज भी हमारे मसीह लोगों के कारण आज भी वैसा ही है। And because of our Christian and we in this हमको कुछ लोग कहते, तू ही है क्या सेवक? हम नहीं है। तू ही है क्या सेवक? हम नहीं है। तेरा ही कलिसिया है क्या? हम नहीं है, हमारा कलिसिया नहीं है करके कुछ लोग हमको भी बोलते हैं। And some says that तू ही सेवक है क्या? तेरे कोई वचन मालूम है क्या? बोलने वाले भी है। And some say that are you only servant and do you only know the एक चंद्रपुर से एक पास्टर तो मेरे को बोला, आपको पड़ेगा बोले, मेरे को बोले तू ज्यादा कर रहा है, चुपचाप रहे। क्या सुसमाचार बताता है, रोड में जाके बताता, हम नहीं है क्या? मुंह बंद कर, बताना नहीं बोले, पास्टर ही है वो। And the servant also said that you will be get beaten. Why are you saying the gospel? आपको पड़ेगा, हम आने वाला है बोले। And one day you are going to beaten. We are going to come. परमेश्वर शिक्षा नहीं देंगे क्या? And God will not God will not punish them. परमेश्वर के लोग हैं सब। They all are people's God's people. लेकिन परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर बचाता है। And God protect God's people. यहाँ पर हम देखते हैं बेन्यामीन का अर्थ क्या है? दाहिने हाथ जैसे, दाहिने हाथ है ना, राइट हैंड, ही इज द राइट हैंड। And here is the meaning of the Benjamin is the right hand. कोई अगर राइट हैंड व्यक्ति साथ में, हमेशा साथ में रहने वाला व्यक्ति कहीं चले गया, नहीं तो स्वर्ग राज्य में चले गए, तो अरे बाप रे, वो भैया का दाहिने हाथ चले गया है, बहुत वो आदमी को खोया करके बोलते हैं। And always the man who lives with us and his right hand, some people said that how भजन संहिता 16 अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे समय। भजन संहिता 16 अध्याय 8वां वचन। Psalms 16 अध्याय 8वां वचन। chapter 16 verse 8. मिलकर पढ़ेंगे। We will read together. సదాకాలము యెహోవా యందు నా గురి నిలుపుచున్నాను, ఆయన నా కుడి పరుషమందు ఉన్నాడు గనుక I have నేను set the Lord కదిలించబడను. away always before me, because he is at my right hand, I shall not be shaken. परमेश्वर मेरा दाहिना हाथ जैसा दाहिना हाथ है, इसलिए मैं स्थिर रहूंगा, मैं किसी को नहीं डरूंगा, बोलता है यहाँ पे दावीद बोल रहा है। And David is saying that God is my right hand and I will not shake. and I will be not shake. परमेश्वर मेरा दाहिना हाथ जैसे रहेगा, मैं किसी को भी डरूंगा नहीं। And God is my right hand and I will not fear to anyone. और एक वचन पढ़ेंगे इस समय। And we will read another verse. भजन संहिता 21वां अध्याय, Psalms 21, 21वां भजन संहिता 18 वचन। 21 Psalm verse 18. नहीं है क्या? अच्छा, 121 18 वचन पढ़ के देखेंगे क्या? And वहाँ पर दाहिने हाथ के बारे में रहता है। हाँ 121 इधर भी नहीं। 18:21 దేవుని హస్తము శత్రువులను పట్టుకుని। ठीक है, 45वां अध्याय 9वां वचन पढ़ेंगे। 45वां अध्याय chapter 45 verse 9.
नवा वचन verse 9. 45 Psalms, verse 9. నీ దయ నొందిన స్త్రీలలో రాజుల Daughter of kings are among honored women. At your right hand is the royal bride in the gold of Ophir. रानी कहाँ पर रहती है? Where the राजा queen lives. राजा जहाँ रहेगा रानी भी कहाँ रहते हैं? दाहिने हाथ में रानी रहती है करके यहाँ पर है। And where king lives, the queen also live to right hand. कलिशा परमेश्वर की दाहिने हाथ में रहेंगे कलिशा। And the church lives to the God's right hand. कलिशा जो है रानी जैसा है। कलिशा जो है परमेश्वर की पवित्र लहू से धोया हुआ कलिशा एक रानी जैसा है। And the queens are like रानी queens. हाँ। और वो रानी हमेशा दाहिने कभी भी देखिए कहीं ना कहीं फोटो ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ जब भी देखिए रानी जो है राइट हैंड में रहती है। And whenever you see the photo of किंग्स लोगों का and king's photo, the queen always beside the king at right side. और कलिशा भी यीशु मसीह के कलिशा जो है रानी जैसा ही है। And Jesus Christ, the church is like a queen. जब प्रभु की लोगों का शादी लगा के देते हैं तो राइट हैंड में वो लड़की को रखते हैं लड़का के साथ में। When the holy marriage is conducted, the groom is राइट साइड में in right side. 121वां भजन संहिता 5वां वचन 121 Psalms, पांचवां वचन verse 5. सब मिलकर पढ़ेंगे। We'll read together. రెడీ యెహోవాయే నిన్ను కాపాడువాడు నీ కుడి పక్కన యెహోవా నీకు నీడగా ఉండును। Peace be upon Israel. परमेश्वर यहोवा आपको संभालेगा और నీ కుడి పక్కన యెహోవా నీకు నీడగా ఉండును। आपके दाहिने हाथ के जैसे परमेश्वर आपके साथ में रहेगा। And God will live with you like right hand. अगर ये दाहिने हाथ को हम कट करेंगे, If we cut the right hand, कैसा रहेगा? how it will be? वैसा ही अगर परमेश्वर को भी हम दूर किया तो हमारा जिंदगी भी कैसा रहेगा? Like that, if we will keep the God away, how our life will be. परमेश्वर ऐसा बोल के आपके दाहिने हाथ राइट हैंड जैसे मैं हमेशा आपके नजदीक में रहूंगा। The God says that like your right hand, I will be with you. हालेलुया। Hallelujah. इसका मतलब हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ में रहता है। And it means that God lives with us forever. हग्गै दूसरा अध्याय Haggai chapter 2, 23वां वचन verse 23. मिलकर पढ़ेंगे। We will read together. 23 वचन दूसरा अध्याय हग्गै दूसरा अध्याय 23 वचन Haggai chapter 2, verse 23. నా సేవకుడగు On that day declares the Lord Almighty, I will take you, my servant Zerubbabel, son of Shealtiel, declares the Lord, and I will make you like my signet ring, for I have chosen you, declares the Lord Almighty. अंगूठी जैसा आपको बनाऊंगा अंगूठी। And I will make you like a ring. अंगूठी कौन पहनता है? And who
अंगूठी अंगूठी का मतलब है अधिकार पाया हुआ व्यक्ति को अंगूठी रहता है। And who are the authoritative person? They have पुराना ring. नियम में राजा लोगों को जब अधिकार मिलता है तो उन लोग ही वो अंगूठी रिंग को पहनते थे। In the Old Testament, when the king take the authority, they were wearing the अगर दूसरा कोई भी signet ring. व्यक्ति वो अंगूठी को अगर पहना है तो गलत है, आरोप है, वो गलत है। And if this ring, if any another person they wear, that यही is, बात परमेश्वर यरूशलेम को बता रहे कि आपको मैंने नियुक्त किया हूँ, आपको मैं अधिकार दिया हूँ, आपको मैं अंगूठी जैसा अंगूठी दिया हूँ, आपको मैं नियुक्त आपको एक अधिकार दिया हूँ करके यहाँ पर जरुब्बाबेल से परमेश्वर बात कर रहा है। and the Lord is saying that I have chosen you and I have give you authority and I have make you like a signet ring. राजा लोगों को वो अधिकार जब मिलता तो वो अंगूठी को राइट हैंड को वो अंगूठी देते थे और पहनाते थे। And when the kings got authority, they were wearing. अभी कोई भी जाके बाजार में जाके 10 रुपया में 20 रुपया में वो अंगूठी को लाके लटका रहा है। And in this time, when we go to market and they are buying in 10 rupees ring. कैसा है भैया, कैसा है भैया, कैसा भैया बोलेगा। And how it is brother, we say. उस समय में अगर किया तो गलत है, उनके ऊपर दंड बैठता था। And at that time, if anyone wears, it is wrong and it is, केवल राजा लोगों को ही ये अंगूठी पहनाते थे, रिंग पहनाते थे। and the king were only they were wearing. गलती Galatians 6वां अध्याय chapter 6. वचन Verse 17. मिलकर पढ़ेंगे हम सब मिलकर। 17वां अध्याय 17वां वचन, 6वां अध्याय 17वां वचन, Chapter 6, verse 17. हाँ We will read together. మిలికర్ పడండి। నేను యేసు యొక్క ముద్రను నా శరీరమందు ధరించి ఉన్నాను। Finally, ఇక మీదట let ఎవడు no నన్ను one శ్రమ cause me పెట్టడు, trouble, శ్రమ for I పెట్టవద్దు। have bear on my body the mark of Jesus. इसे और आगे में मुझे कोई भी तकलीफ नहीं देगा, कोई भी तकलीफ नहीं देना है। क्यों है? यीशु मसीह का क्या है, हिंदी में क्या है? हाँ मुद्रा, हाँ क्या लिखा है? थोड़ा जोर से बोलो। दाग 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 मार्क, दाग मार्क, मुद्रा, डब्बा दाग मुहर, ठीक है। यीशु मसीह का मुहर को मेरे शरीर में धारण किया हूं करके यहाँ पर तेलुगु में ऐसा है। And I have taken the mark of Jesus. In Telugu it is written. शरीर में पूरा ही रिंग जैसा, जो अंगूठी जैसा यीशु मसीह को ही धारण किया है। And I have taken and I have bear on my body the mark of Jesus. सिक्का, सील जैसे, सिक्का जैसे, मुहर जैसे, सही ऐसा वो धारण किया है। And he is taken a seal. कोई भी आगे में मुझे कोई भी तकलीफ नहीं देगा, तकलीफ नहीं देना। And no one will trouble me and no one trouble to me. ऐसा करने से मुझे भाई बहुत परेशानी होता है। ऐसा पौल बता रहा है। And Paul is saying that हम सब यीशु मसीह का जो मुहर को हमने पाया है। and we have received the seal of Jesus Christ. यीशु मसीह का मुहर को पाया हुआ व्यक्ति हमेशा स्थिर रहेगा, प्रभु में बढ़ेगा। And the person who bear the seal of Jesus Christ, he will be always stable. अन्य जातियों के साथ, सातान के लोगों के साथ मेल मिलाप में नहीं रहेगा। And he will not make मैं एक राजा का बेटा हूँ, मैं राजा हूँ, मेरे को परमेश्वर ने
एक रिंग दिया है, एक मुद्रा दिया, पवित्र आत्मा का वो अभिषेक दिया, वो मेरे को सील कर दिया है। And God, I am the son of, I am son of king, and I am the king, and God has sealed. और हमने देखा And he has कि given me सातान ring. के पास में भी एक मुद्रा है, एक क्या है, मुहर है। And Satan also have ring. वो कौन सा मुहर है बताओ? हाँ? मालूम है? Which seal it is? कभी सुने कि नहीं सुना? कोटगल में, नहीं तो चर्च में, कहाँ पर भी? हाँ? कौन सा संख्या है सातान का? Which number? हाँ? हाँ, साहस है? हाँ, किसका है वो? सातान का, वो भी देता है। And he also give us आखिरी समय में in the last days. ऑलरेडी चालू हो गया है, उधर इधर वो कुछ कुछ देशों में चालू हो गया है। And already it is starting in मसीह लोगों के वो घर में भी वो कुछ कुछ कपड़ा के और कुछ कुछ बाक्स के ऊपर वो नंबर आ रहा है, सील पे, सील के साथ। and some in some of house, in some of things that number is coming. प्रभु के लोग वो कितना भी मूल्यवान वस्तु में रहने से उसको फाड़ के हट करके बोल रहा है। प्रभु के लोग बोल रहा है, वैसा कर रहे हैं। And the godly people, they are seeing and they are tearing and they are throwing. ओ कुछ लोग ना डरने वाले, प्रभु को ना डरने वाला है, कुछ नहीं होता, आने तो वो संख्या ये नहीं करके ले रहा है। अभी And से- some अभी of से आदत कर रहा and है। some of few the Christian people also, they are taking nothing will be happen. और आगे में सातान बहुत परेशान करेगा, ये आपको लेना ही ये करके बताएगा। And in forward, Satan will trouble you. वो नामदारी विश्वासी, नामदारी सेवक लोग, "ए, कुछ नहीं होता, इतने सारे लोग ले रहे तो ये दुनिया है, ले लो, कुछ नहीं होता, ले लो" बोलेंगे। And some namesake believers and namesake servant will also, they will say nothing will be happen. सच्चाई विश्वासी, ठीक है। सच्चाई सेवक, सच्चाई विश्वासी, आत्मिक विश्वासी, यीशु मसीह का मुहर को लिया हुआ, धारण किया, यीशु मसीह को धारण किया विश्वासी, ऐसा उनके साथ मेल मिलाप और संगति में नहीं रहेगा। And truth believers and truth servant and truth godly people will not, the correct godly sealed person, he will ignore it. तो बेन्यामीन का अर्थ यह है कि राइट हैंड यानी दाहिने हाथ जैसा। And the Benjamin's Benjamin's meaning is a right hand. यीशु मसीह भी जब प्रार्थना आने, यीशु मसीह जी उठने के बाद पिता के पास जब गया तो दाहिने हाथ में बैठ के हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है करके बाइबल में लिखा है। In the Bible, it is written that after he went to Jesus Christ went to the heaven, he sat in right hand. और प्रार्थना कर रहा है करके राइट हैंड में दाहिने हाथ में बैठ के हमारे लिए रोज रोज प्रार्थना कर रहा है। And he is praying every day in a right hand, God's right hand. हमारे साथ में हमेशा रहने के लिए पवित्र आत्मा को हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, लेकिन पवित्र आत्मा को परमेश्वर हमारे लिए दे दिया है हमारे राइट साइड में रहने के लिए। And God has sent the Holy Spirit to live with us forever, and he lives in right hand. लेकिन परमेश्वर ने हमको कुछ नियम बताया, But God gave us मूल्यवान some जीवन को हमको law. दे दिया परमेश्वर। And God has given His precious life. परमेश्वर एक राजा जैसा, रानी जैसा रहने के लिए एक मुहर लगाया हमको। And God has put a seal on us to live like a king and queen. परमेश्वर के लोग जैसे रहने के लिए परमेश्वर ने हमको सब कुछ सिखाया। And God has taught to live और मूल्यवान जीवन को हम इस दुनिया में खराब नहीं करने का, अच्छा जिंदगी जीना है हमें। and we should live in good way. Do not destroy our precious life. वो पुराने लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं तो नया हूँ करके उनके जैसे हम जिंदगी नहीं जीना है। And do not live like old men who they are doing this like so. परमेश्वर के वचन क्या बोल रहा है वो सुन के वचन के अनुसार हम जीना है। And बहुत सारे विश्वासी हमको मिलता है कि बीड़ी पीने वाला 20 साल से विश्वास किया हुआ व्यक्ति
बीड़ी पीने वाला व्यक्ति आपको मिल जाएंगे। And from 20 years, the believer who take a cigarette. वो उनको उन लोग बोलेंगे कि कुछ नहीं होता, मैं 20 साल से विश्वासी हूँ, कुछ नहीं होता, पीरे बाबू बोलेगा। And he will say that take it. I am drinking from 20 और years. हमको ऐसा विश्वासी 20 साल का 25 साल का विश्वास में वो खर्रा खाने वाला मिलेगा। And we will meet who eat kharra from 20 years and और 25 वो years. बोलेगा मैं 20 साल से विश्वासी हूँ, मैं खर्रा खा रहा हूँ, कुछ नहीं होता, मैं प्रभोज भी लेता हूँ और लहू भी पीता हूँ, बोलता है वो। And he will say that I am eating from 20 years and 25 years and I am taking bread and wine. और एक ऐसा विश्वासी Nothing will be मिलेगा, happen. चोरी करने वाला विश्वासी भी मिलेगा। And we will meet who is a robber. अरे कुछ नहीं होता, ये दुनिया में छोटे छोटे ऐसे गलत करना ही पड़ता है, नहीं तो जिंदगी जिएंगे नहीं, बोलेगा। And he will say that in this world we have to do this type of small wrong thing in this world. और ऐसा ही Nothing will छोटे be छोटे happen. करते ऐसा ही जिंदगी आखिरी तक वैसे ही जिंदगी जिएगा, प्रभु आते तक। by doing this type of small thing till last days until God comes. he प्रभु will do. बोलेगा कि बाइबल में मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय 21 वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु प्रभु बोलने वाले स्वर्ग राज्य में नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुन के उस प्रकार जीने वालों को स्वर्ग राज्य करके प्रभु बोलेगा। And God will say that Matthew chapter 7 verse 21 that who say Lord Lord did not but who lives उस according समय to में my मैं will आपको they जानता ही will नहीं है, enter उस in समय heaven. में आपको मैं जानता ही नहीं करके परमेश्वर बोलेगा। And God will say that I don't आपको मैं जानता ही नहीं है करके यीशु मसीह बोलेगा करके यहाँ पर लिखा है, वचन में लिखा है। and in word there is written that I don't know you. ठीक है, प्रार्थना करें। Okay, shall we pray? ठीक, प्रार्थना। सब लोग खड़े हो जाएंगे।